A fierce gun battle broke out yesterday in Holongi area just adjacent to the NH415 highway, where the Capital Police apprehended the drug kingpin Rohit Basumatari. As per the reports by the SP Capital, Rohit Basumatari was a wanted man by both Assam and Arunachal Police and had multiple drug-related cases registered against him and had been evading arrest. Acting upon the intelligence, the Capital Police, once they got to know about his arrival in the state, they set out various checkpoints, various barricades. And once they saw the suspicious vehicle coming, Capital Police tried to stop the vehicle, but the vehicle broke through the barricades, and as per the reports also, the vehicle crashed in the electric pole. Once the police tried to arrest Rohit Basumatari, he opened fire in the SDPO Itanagar's vehicle. In this gun battle, two of the police officers were injured. One is SI Bakang and another one is ASI Manish Kumar. Both of them sustained injuries, and right now they are receiving treatment in RK Mission Hospital and are out of danger. And as for Rohit Basumatari also sustained minor injuries and is also receiving treatment as well. And as you can see behind me, this is the vehicle of SDPO Itanagars, which got into the gun battle, and you can still see fresh bullet marks. It is right now here in SP Capital's office. Right now I'm here in 6 Kilo Holongi, where the incident yesterday took place. You can see behind me there's an electric pole and there's a huge stone just adjacent to it. This is the exact spot where Rohit Basumatari's vehicle crashed. The tire marks are still fresh here and the police barricade is still lying here. I've spoken to the locals. They said the Capital Police had blocked the entire road. They had closed down the road, which apparently caused a huge traffic jam. Few of the locals out here came here to see what was exactly causing the traffic jam. They said they couldn't see what was happening exactly, but they could hear the gunshots. A local source from a restaurant near Holongi has revealed that the police have seized the CCTV system to gather crucial evidence. According to the source, between 8 and 9 p.m., a loud car crash was heard, followed by 3 rounds of gunshots just minutes later. Later, at around 10 p.m., a police official stopped by the restaurant for refreshment and mentioned that a drug peddler had committed a crime and was attempting to escape. He stated, "We have him, but he is on the run. In the chase, 2 police officers have been shot." Between 10 and 11 p.m., a second round of gunfire erupted in the area. The source said that he heard a rapid succession of 12 to 16 shots during this intense exchange. पहले भी कैपिटल पुलिस ने असम बेस्ड और नागालैंड बेस्ड काफ़ी पेडलर्स पकड़े हैं डिफरेंट जगहों से. उसी एक कड़ी में हमें ये पता चला कि होलंगी वाला रूट जो है ड्रग पेडलिंग के लिए, सिर्फ पेडलिंग के लिए नहीं, एक्सचेंज ऑफ नार्कोटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है. ख़ासकर लास्ट 1-1.5 महीने से ऐसी हमारे पास खबर आ रही थी. मे बी इट्स गॉट टू डू विद द फैक्ट दैट वो वाले स्ट्रेच पे कहीं मोबाइल सिग्नल्स या कैमराज नहीं हैं, तो वो लोग होलंगी से एंटर करके वहीं पर ही नार्कोटिक्स का सप्लाई करके उधर से ही वापस निकल जाते हैं, ज़्यादा टेरिटरी में नहीं आ रहे थे. तो आपने देखा होगा कि लास्ट हफ्ते 10 दिन से उस वाले स्ट्रेच पे हमारी काफ़ी नार्कोटिक्स के अगेंस्ट कार्रवाई जारी है. अभी हमने 2 बड़े केसेस भी दिए विद इन द लास्ट 1 वीक, क्योंकि वही एक इंट हमारे पास चल रही थी लास्ट 1-1.5 महीने से. इसके अलावा एक कॉमन चीज़ सामने आई कि ये जो हमने ऑपरेशंस लास्ट 1 वीक में किए नार्कोटिक्स के अगेंस्ट, और उसके पहले भी कुछ हमने सस्पेक्ट्स पकड़े पोजेशन के साथ, नार्कोटिक्स पोजेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं उनमें एक ही शख्स की आइडेंटिटी बार बार रिवील हो रही थी.
उसका नाम है रोहित बासुमात्रे, रोहित ROHIT, इलियास RUHIT। अलग अलग नाम से, मतलब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स में नाम उसका स्टोर था। तो रोहित बासुमात्री एक ऐसा लिंचपिन था जो डिफरेंट डिफरेंट नार्कोटिक्स, स्मॉल टाइम नार्कोटिक्स सप्लायर्स कम पेडलर्स के सप्लायर में आता था। कि वो बाहर से जहाँ से भी लाता है, हमारे जो स्मॉल टाइम सप्लायर्स थे उनको नहीं पता था, और वो बाहर से कहीं से लाता है और इनको बेचा करता था, और ये फर्दर आके हमारी टेरिटरी में नार्कोटिक्स सप्लाई किया करते थे। कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे रोहित बासुमात्री खुद हमारी स्टेट में आके नार्कोटिक्स सप्लाई करता था। फिर हमने रोहित बासुमात्री पे थोड़ा होमवर्क करना शुरू किया। लास्ट 1-1.5 महीने में जो हमारा होमवर्क हो, उसमें हमें पता चला कि रोहित बासुमात्री के ऊपर ऑलरेडी 9 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें से एक हमने अभी जब जो चिंपू में केस दिया था नार्कोटिक्स का, उसमें वो इन्वॉल्व था, वो 25 का है। उससे पहले असम अरुणाचल मिला के उसके अलावा 8 और केसेस हैं, 8 और एक 9 केसेस हैं, अलग अलग तरीके के, पोजेशन ऑफ इलीगल आर्म्स, नार्कोटिक्स, रॉबरी, डिफरेंट डिफरेंट हीनियस ऑफेंसेस उसके ऊपर रजिस्टर्ड है। और बेसिस भी बहुत जल्दी बदलता है, नंबर्स भी बहुत जल्दी बदलता है। बहरहाल इसको देखते हुए हमने उस पर काम करना शुरू किया, और एक कॉमन लिंकेज जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि वो जब भी आता है अपने साथ क्वांटिटी कैरी करता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि अपने साथ एक इलीगल आर्म्स भी कैरी करता है। आज से 15-20 दिन पहले भी उसकी मूवमेंट की खबर हमें मिली थी, तो वो यहाँ से यूपिया साइड पे गया था, बट हम उसको इंटरसेप्ट हमें करना था आज से 15-20 दिन पहले। बट सेम मोबाइल अगर वो लाता है तो ऑफ कर देता है, पता नहीं लगता है, और किसी के साथ नहीं आता है। व्हीकल भी हमें तब तक आइडेंटिफाइड नहीं था, तो उसको जब हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि यूपी आके वो चला गया, तो हम वो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ा बाद में मिला था, तो वो एक इन्फो गैप हो गया। तो वी वर वेरी केयरफुल कि अब जब भी नेक्स्ट टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन मूवमेंट की आएगी, सो वी विल हैव टू डिटेन हिम, अरेस्ट हिम एंड क्वेश्चन हिम रिगार्डिंग हिज इन्वॉल्वमेंट्स इन आर केसेस। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन कल दोपहर में हमारे पास आई, हमारी टीम को मिली कि आज रोहित बासुमात्री का मूवमेंट होलोंगी से ईटानगर की साइड हो सकता है, और वो क्वांटिटी भी कैरी कर रहा होगा, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल बी आर्म। तो हमें भी सजेस्ट किया गया कि यू प्लान इट केयरफुली। और होलोंगी से ईटानगर आते हुए जो स्ट्रेच था उसमें दोनों साइड पे हमने नाके लगवाए। अब हमको एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है उसका पता नहीं था, हमें सिर्फ एक ब्लू रेनॉल्ट का पता था और लास्ट के 2 डिजिट्स पता थे गाड़ी के। तो हमने बट वी वर नॉट वेरी श्योर कि उसी गाड़ी से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी जैसे मैं बता रहा हूँ 15-20 दिन पहले जब वो यहाँ से यूपी निकल के गया था, देन ही वाज इन अनदर व्हीकल, तो वी वर नॉट वेरी श्योर। बट जो इंट थी, वी स्टार्टेड, वी हैड ओनली दैट मच टू वर्क अपॉन। तो हमने दोनों साइड नाके लगाए, और हम लोग जो भी उधर से आती गाड़ियों को चेक करने लगे। ये हमारी चेकिंग अराउंड 4:15-4:20 के आसपास शुरू हो गई थी। 6 बजे के आसपास, 6:15 आई थिंक टू बी एग्जैक्ट, वो हमारे डिस्क्रिप्शन को मैच करती हुई एक गाड़ी वहाँ से आती हुई दिखी हमारे स्टाफ को। जो हमारी टीम थी उन्होंने उस गाड़ी को इशारा करके रोकने की कोशिश की, बट हमारी बैरिकेडिंग वहीं लगी हुई थी, वो नहीं स्टॉप किया। वो भागने की कोशिश करने लगा, तो बैरिकेड पे उसकी गाड़ी हिट हुई। बट ऑब्वियसली जब बैरिकेड वो लोहे का जब कोई हिट करता है तो ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द व्हीकल इन दैट सेंस। तो वो बैरिकेड को हिट होके लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल में जाके वो गाड़ी लग गई। इंसिडेंट फिर ऐसा हुआ कि वो जैसे ही वहाँ पे वो रुकी, ये SDPO साहब की गाड़ी सबसे आगे थी, ये लोग बाहर निकले उसको अकॉस्ट करने के लिए। ही केम आउट ऑफ द ड्राइविंग सीट एंड शॉट एट द कार ऑफ SDPO। कार पे बुलेट मार्क्स हैं, बाद में मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, उन्होंने ये सब नोट किया है। एंड देन ही उसके नीचे ही एक रास्ता जाता है, आप जाएंगे अगर वहाँ मौके पे तो आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से नीचे एक रास्ता जाता है,
तो वो उस रास्ते से जाके जंगल के थ्रू उसने एस्केप करने की कोशिश किया, तो हमारी टीम ने उसको फॉलो किया। नीचे जब वो गए अराउंड 20-25 मीटर्स नीचे जाके ही अगेन शॉट एट द पार्टी दैट वाज फॉलोइंग हिम। Initially, when he fired at the SDPO to restrain him, SDPO and the team they shot back और उसकी विंडशील्ड पे भी उस गाड़ी पे भी एक वो बुलेट मार के आई थिंक 1 बुलेट मिस्ड और एक लगा है। फिर नीचे जाके जो टीम ने उसको फॉलो किया उसमें उसको अकॉस्ट वो बहुत बारिश शुरू हो गई थी, बहुत स्लिपरी रास्ता था, तो वो जैसे ही नीचे गया उसने पीछे मुड़ के कपल ऑफ मोर फायर्स ही मेड, जिसमें से 2 फायर जो सबसे आगे हमारी टीम का मेंबर था सब इंस्पेक्टर तामो बखांग था, तो दे वर ऑल आर्म्ड एंड हैविंग बीपी जैकेट्स बिकॉज इंट पहले से थी, तो फायर्ड अ कपल ऑफ बुलेट्स, उसमें से 2 बुलेट्स तामो बखांग के बीपी जैकेट पे लगी और उसके अंदर यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हो गए हैं, तो ही इज़ ऑल्सो इन दी आर्किमेशन राइट नाउ। जवाबी कार्रवाई में हमारे यहाँ से फायरिंग हुई एंड ही गॉट शॉट इन द लेग, ही फेल डाउन एंड द वेपन स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। टीम ने फिर उसको अकॉस्ट किया, वेपन को साइड किया, उसकी बॉडी सर्च किया कि कुछ और उसके पास वेपन तो नहीं है, और उसको डिटेन किया गया। सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो है हमारे EAC साहब और CO मैडम, उनको भी बुलाया गया और उनके प्रेजेंस में जो उसकी गाड़ी थी उसको सर्च किया गया। डिग्गी के नीचे एक कैविटी बना रखी थी, उस कैविटी के अंदर आई थिंक 1.5 सोप केसेस ऑफ प्रोबेबल ब्राउन शुगर नारकोटिक्स वहाँ से भी रिकवर हुआ है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव बीन वीडियोग्राफ्ड एंड उसके बाद अभी उनको हॉस्पिटल ले गया और हमारा जो ASI मनीष है ही इज़ बीन डिस्चार्ज नाउ। तामो बखांग इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, ही इज़ अंडरगोइंग अ CT scan for trace of any further injuries, and the accused is also in the hospital right now. I think he'll be undergoing an orthopedic procedure maybe sometime soon. वहाँ से आने के बाद SDPO साहब recounted the whole incident and उनके complaint पे a case has been registered and the case has been endorsed to Inspector Reena Sonam, who is outside that police station for an impartial investigation. According to our police sources, Rohit Basumutari, the drug kingpin, operated from different locations, from Biswanath, from Gopur and various other locations as well. The first case registered against him was on 2010 in Golaghat police station. From 2018 to 2019, his involvement in drugs and arms and ammunition became more active. On 2023, his operations reached Arunachal Pradesh. It's no doubt that yesterday's operation was a major success, with police personnel putting their lives ahead to apprehend the drug kingpin. But despite such continuous efforts, the drug crisis continues to rise in our state, Arunachal Pradesh. The only question which remains right now is how we as a public and the law enforcement will come together to tackle this growing crisis. This is Yomgachisi reporting with camera person Rangkap Wangsu. Thank you for watching News 5.